In this question we are given with one figure. This is named as A, B, C, and these points are marked as E and D, and this is your point O. And the question is like, in the given figure it is given that angle A is equals to angle C. Angle A is equals to angle C. It is given in the question. And AB is equals to BC. This is also given that arm AB is equals to arm BC. AB और BC equal हैं, and we have to prove that triangle ABD is congruent to triangle CBE. ABD और CBE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है. अब यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन की हुई है. पहली बात तो देख लेते हैं, ABD और CBE अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ये डायरेक्टली प्रूव हो रहे हैं. ट्रायंगल ABD कंसीडर करेंगे और ट्रायंगल CBE कंसीडर करेंगे. इन बोथ द ट्रायंगल्स these two angles are equal, it is given to us. Angle B is common angle, common हो जाएगा, and side AB and BC ये equal है. तो angle side angle, and in this triangle also angle side angle से immediately ये prove हो जाएंगे congruent. But it is given that you have to prove that both the triangles are congruent by angle side congruency rule. आपको इसको एंगल साइड से ही कॉन्ग्रुएंट करना है. तो एंगल साइड तो फॉर्म नहीं हो रहा है, एंगल साइड एंगल फॉर्म हो रहा है. तो अब एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे यूज़ करोगे? एनी आइडिया क्या कंस्ट्रक्शन करें? AC कंस्ट्रक्ट कर देंगे. चलो अकॉर्डिंग टू यू मैंने AC भी कंस्ट्रक्ट कर दिया. नाउ you have to prove that these two triangles are congruent by angle side congruency rule. AOC is not the part of your triangle ABD and CBE. It is neither the part of ABD nor the part of CBE. दोनों ही triangles का part नहीं है AOC. Yes. Angle B is common, that is okay. Angle B common है, A भी equal है. Then but it is coming to be angle side and angle congruency rule. We have to prove that these two are congruent by angle side. It means we need angle, then again one angle, then one side. ऐसा कुछ चाहिए हमें. Yes. Okay, fine. But this angle is again not the part of both the triangles, neither ABD nor CBE. This is not the part of the triangle. चलिए हम देखते हैं कैसे होगा. Look over here. In triangle AOE ट्राइंगल में देखो, एंगल A प्लस एंगल AOE, that means this angle
plus angle AEO. It means I'm talking about this angle. What will be the sum of these three angles? 180 degree angle sum property, right? Let this be your equation number 1. Similarly, in triangle COD, angle C plus angle COD plus angle CDO. The sum of these three angles is again equals to 180 degree angle sum property. Let this be your equation number 2. Compare equation number 1 and equation number 2. In both the equation, in RHS we have 180 डिग्री, RHS दोनों में इक्वल है, 180 डिग्री है. इट मीन्स LHS भी इक्वल होगा. सो एंगल A प्लस एंगल AOE प्लस एंगल AEO इज इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल COD प्लस एंगल CDO. यहाँ तक कुछ डाउट? It is given in the question that angle A is equals to angle C. दिया है क्वेश्चन में. It means the measure of these two angles are equal, so we can cancel both the angles. Okay. Another thing, just now someone said that AOE is equals to COD, vertically opposite angles. AOE and COD vertically opposite angles बन रहे हैं, तो इक्वल होंगे. इक्वल होंगे तो इसको भी कैंसल आउट कर सकते हैं. कैंसिल कर दिया. वी आर लेफ्ट ओनली विद एंगल AEO एंड एंगल CDO. इक्वल हो गए यहाँ से. दैट मीन्स वी आर सेइंग दिस एंगल AEO and CDO, these two angles are equal. यही हमने इक्वल प्रूफ किया है. Now angle AEO can be written as 180 degree minus angle BEO. Angle AEO can also be written as 180 degree minus angle BEO. In the same way, angle CDO can also be written as 180 degree minus angle BDO. It means this angle. लिख सकते हैं. Again this 180 degree will get cancelled out and we are left with minus minus भी बाद में cancel हो जाएगा. देखो लिखेंगे. So here we will get angle BEO is equals to angle BDO. ऐसा कुछ आएगा. It means we are saying these two angles BEO and BDO are equal. Now just look in triangle ABD. Here ABD triangle देखो, बीच की लाइन मिस, इसको छोड़ दो, ये बीच वाला. सिर्फ एंगल ट्रायंगल ABD में देखो, एंगल A इज इक्वल
एंगल डी इज इक्वल एंड साइड ए बी इज इक्वल, दैट इज एंगल साइड मिल रहा है. एंड लुक इन द ट्रायंगल सी बी ई, angle C is equal, angle E is equal and side BC, that is angle side मिल रहा है. Okay, now it means we can prove that both the triangles are congruent by angle side rule. In triangle ABD and triangle CBE, we can say that angle A is equals to angle C, this is given to us. Angle BEO is equals to angle BDO. Let this be your equation number 3. From equation 3 we got this. And side AB is equals to side BC. This is again given to us in the question. So we can say that triangle ABD is congruent to triangle CBE by angle side criterion. समझ में आया ये? किसी स्टेप में कोई डाउट? ओके देखो, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में साइड ए बी एंड बी सी बोथ आर इक्वल, एंगल ए एंड एंगल सी ये भी इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी डी एंड सी बी, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी, दिस कंप्लीट ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी बी ई, this triangle, both the triangles are congruent. ये हमें प्रूव करना था. But here we were given with one condition that you have to prove these two triangles are congruent by angle side congruency rule. ये प्रूव करना था कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास ये दो एंगल्स ऐसे, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं बन रहा था, तो हमने पहले सिचुएशन बनाई. We have considered triangle AOE. In this triangle sum of all the three angles is equals to 180 degree, because we know that the sum of three interior angles of a triangle is equals to 180 degree. तीनों angles का sum 180 degree लिख दिया. In the same way in triangle COD also sum of these three angles is equals to 180 degree लिख दिया हमने. After that RHS में दोनों में 180 डिग्री ही था, इट मीन्स LHS शुड बी इक्वल, LHS भी इक्वल ही होना चाहिए. LHS कंपेयर किया हमने. आफ्टर कंपेयरिंग दी LHS we have seen that angle A and angle C both are equal, it is given in the question. अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके मेजर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर उनके मेजर्स इक्वल हैं, इसका मतलब वी कैन कैंसिल देम आउट, उसको कैंसिल कर सकते हैं. एंड सिमिलरली एंगल ए ओ ई एंड एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये आप लोगों ने ही बताया था. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनका मेज़र भी इक्वल होगा, इसको भी हम कैंसल आउट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे. लास्ट में वी वर लेफ्ट विद ओनली एंगल्स ए ई ओ एंड एंगल सी डी ओ, हमने इनको एज इट इज़ लिख दिया. तो हमारे पास ये आ गया एंगल ए ई ओ और एंगल सी डी ओ दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं. बट हमें ए ई ओ और सी डी ओ दीज टू एंगल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हमारा कोई यूज़ नहीं हुआ इतना सॉल्व करने का. बट इसके साथ में हमने देखा लीनियर पेयर बन रहा है एंड दिस एंगल वी कैन यूज़ इन आर ट्रायंगल, इसका यूज़ कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया, लीनियर पेयर बन रहा था तो इन दोनों का सम 180 होगा. इट मीन्स दिस एंगल कैन बी रिटन एज 180 माइनस दिस एंगल.
तो इसको हमने ऐसा ही लिखा 180 माइनस एंगल BEO, एंड इन द सेम वे दिस एंगल इज ऑल्सो रिटन एज 180 माइनस एंगल BDO। 180 कैंसल आउट हो गया, बाद में माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद एंगल BEO एंड BDO, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। आफ्टर दैट वी गॉट 3 कंडीशंस। हमने चेक किया तो एंगल साइड क्राइटेरियन बन रहा था, दोनों ट्रायंगल्स लिए हमने, ये इक्वल गिवन था, ये हमने प्रूफ किया, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड क्राइटेरियन। अभी क्लियर है? The question is like we are given with the polynomial this, and x minus 2 is a factor of this polynomial। x minus 2 क्या है? इस polynomial का एक factor है, and when we divide this polynomial by x minus 3 it leaves remainder 3। तब यहाँ पर remainder कितना बचता है? 3 बचता है। So we have to find the value of a and b। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। एनी गेस कैसे कर सकते हैं? तो 0 के इक्वल रख करके वैल्यू आ सकती है। एक तो कंडीशन ये बनेगी x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लेट दिस पॉलिनोमियल बी p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 2 0 के इक्वल होगा, और x माइनस 2 इसका फैक्टर कब होगा? जब p ऑफ x इक्वल्स टू 2 0 के इक्वल आएगा। यही हमने पढ़ा था, जब p ऑफ x इक्वल्स टू a 0 के इक्वल होता है तभी x माइनस a क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एंड यू कैन राइट इट एज 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता इजीली हमें वैल्यू मिल जाती, बट हियर वी हैव 2 वेरिएबल्स, तो वैल्यू तो नहीं मिली। वी आर गिवन विद वन मोर कंडीशन दैट व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 3 देन इट लीव्स रिमाइंडर 3। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? When we divide, हाँ बहुत बताइए। P ऑफ क्या करें? अभी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है? p ऑफ x इक्वल्स टू 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सो 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, this time this is equals to 3. This is 27 plus 9a plus 3b plus 6 equals to 3, and 9a plus 3b, इसको भी डायरेक्टली मैं इधर ही ले आ रही हूँ, डायरेक्टली इसको इधर ले आओ तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 3 इज़ 3 एंड 27 प्लस 3 इज़ 30 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर देखो 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें, 3 से मतलब पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 3a प्लस b प्लस 10, थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन, इक्वल्स टू
ज़ीरो। तो यहाँ से आ गया 3a प्लस बी प्लस 10 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इधर जाएगा, डिवाइड होगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो कॉमन ले सकते हो 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये 2a प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। और 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। This is your equation number 1. This is your equation number 2. Now you have to solve equation 1 and equation 2. Solving 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, ये है 2a प्लस बी प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पर है 3a प्लस बी प्लस 10 इक्वल्स टू ज़ीरो। सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। ये b और b तो ज़ीरो हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। 2a माइनस 3a इज़ माइनस a एंड 7 माइनस 10 इज़ माइनस 3 equals to 0. From here we will get the value of a equals to 3 और इसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सपोज़ करो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग a equals to 3 in इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, 2 into a is 3, सॉरी इट विल कम एज -3। ये इधर शिफ्ट करोगे तो +3 हो जाएगा, माइनस a है यहाँ पर। 2 into -3 प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो b विल कम एज दिस विल बी इक्वल्स टू -1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ से हमें a और b मिल गया।